मीर उस्मान फारूक है। मुझे लगता है ये हर जगह भी मीडिया पे सिंस इट्स द टेल ऑफ द 20 days so everybody knows what's happening here, but I would just try to enumerate every point for you what's happening. So the first thing is our demands. We demand that our provisional list, i.e. selection list, should be published as soon as possible, and if it's in the process they should intimate us about the same. And the second is that we have been treated not like the potential civil servants of the society, not like the assets of the society, let alone being the assets of the society. We have been treated as, we have been treated as animals. Like we have been standing here right in the scorching sun and the downpour of rain, and nobody came to us to address our grievances. So we want, since we have been here for the 20 days, so we want the compensation for 20 days. This is the second demand we want right now. And the third is an apology, since we have been subjected to lathi charge and no one came to address, so we want an apology from the administration as well. Yeah, those are the three main primary points that I would like to highlight. Yeah. So the first thing is about Vikas. Yeah, it's laughable. Yeah, you can see the Vikas over here. You can see the Vikas in my eyes, on my face, and on the faces of these old people who are hopeless now about the government. This is Vikas. This is your Vikas, and your daughters are here, right in front of you. Yeah. And they're here for 20 days without eating nothing, day in and day out, and asking for the justice, not asking for anything, for your rhetorics. No, they're asking for just what they deserve. They demand what they deserve. Yeah. So about the Patthar Chodo and whatever, that slogan makes me laugh. Yeah, it's ironic. They're talking about this. We are doing, I mean, without any without any violence. We are here standing. With all the civil processes, we are doing this, but we're being pushed and forced to go into the abyss of the civil disobedience and into non-violence. Since we have been lathi charged so many times and treated like animals. Yeah. So I think the only option remains to us is either civil disobedience and non-violence. I'm telling you, pray for me that I choose civil disobedience rather non-violence. That's just, we want the list. Inshallah. We want justice. 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 हमारा आज यहाँ पर 20th डे है। 20th डे मीन्स अ लॉट। और हम जम्मू कश्मीर में वहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि इस कौम का यूथ सड़कों पे बैठा है और वो हमारे पास एक बार भी नहीं आए, या कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं निकली कि जो हमें यहाँ से उठा सके। हम यहाँ अपनी माँ बाप की उम्मीदों के लिए आते हैं, अपनी कौम की उम्मीदों के लिए आते हैं, क्योंकि हम सब ने मेहनत से एक सीट पाई थी। हर एक ने एक सीट पाई थी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और लास्ट पे हमें यहाँ पर सड़कों पे बैठना पड़ा। जब हम सुबह निकलते हैं हमारे माँ बापों को कुछ उम्मीदें होती है, और जब हम शाम को वापस घर आते हैं तो उनकी उम्मीदें टूट जाती है। उनकी आंखों में वही आंसू होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दी और हमारे घर वालों को दी। क्या लगता है आपको, क्या होगा? हम तो यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठने के लिए तैयार है, भले ही वो 50 दिन हो, भले ही वो 100 दिन हो, और भले ही वो 200 दिन हो। हम यहाँ पर बैठने के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन है नहीं, ना तो यहाँ पर कोई और एम्प्लॉयमेंट का कुछ है। और इन्होंने परसों पोस्ट निकाले, हम किस पे भरोसा करें? उसी JKSSB पे भरोसा करें जिसने हमें धोखा दिया, हम उसी पे भरोसा करें, उसी के लिए हम वापस फी भरें। यहाँ पर रहने की बहुत प्रॉब्लम है हमें। यहाँ पर हम खुद से, एक तो हम यहाँ पर खुद से पैसे कलेक्ट करते हैं, फिर हम एकोमोडेट करते हैं जो दूर से आते हैं।
हमें यहाँ पर हम पिछले 20 दिनों से यहीं पर है, लड़के भी और लड़कियाँ भी। हमें यहाँ पर एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पर खाने पीने की प्रॉब्लम है, हमें वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। एक तो हम ऑलरेडी मिडिल क्लास फैमिली से है, हम यहाँ पर कोई भी नहीं हाई फाई फैमिली से, हम सारी मिडिल क्लास फैमिली से, और हमें वो भी देखना पड़ता है कि जो रात को श्रीनगर में रह रहा है उनके लिए हमें एकोमोडेट करना पड़ता है, खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ता है हमें। हमारी यही गुजारिश है उनसे कि प्लीज़ आप हमारा सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ कीजिए, प्लीज़ आप हमारा, क्योंकि अगर इसमें कुछ होता तो वो फिर आप लोगों ने पहले ही विदिन 25 डेज़ निकाला होता। आज 1.5 महीना हो गया, आप क्या सोचकर हमारा लिस्ट रोक के रखे है। जैसे PSI में सिर्फ 25 दिन में ही इंक्वायरी हुई, हमारा तो 1.5 महीना हो गया। अगर कुछ होता वो तो 25 दिन ही निकल के आता। इस बार तो नहीं है, वो तो सब इंस्पेक्टर में था, फाइनेंस में तो कुछ नहीं है। प्लीज़ आप हमारा सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ कीजिए। रोज़ आता हूँ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं देखिए, कल मैं गवर्नर साहब की जो उन्होंने बात रखी थी, उनकी बात से मैं भी बात रखूँगा, उनको कोट करके, कि उन्होंने कहा कल कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। देखिए, हम यहाँ पे गुनहगार नहीं हैं, हम बेगुनाह हैं, और अब पूरे जम्मू कश्मीर को पता चल चुका है कि हम यहाँ पे बेगुनाह बैठे हुए हैं। हमारा गुनाह सिर्फ यही था कि हमने हार्ड वर्क किया था, हार्ड वर्क करके हम यहाँ पे पहुँचे थे। मैं अपनी बात करूँगा, 2018 का पास आउट हूँ मैं, और 2018 के बाद मैंने कंटिन्यूसली पढ़ाई कर करके 4-5 एग्ज़ाम्स में मार्जिनली में ड्रॉप होने के बावजूद फिर यहाँ पे पहुँचा था। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद मुझे लगा था कि हमारी ज़िंदगी अब अच्छी हो जाएगी, हमारा घर अब संवर उठेगा। लेकिन अचानक से जब हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद हमारा मेरिट लिस्ट आया, हम क्वालिफाई हुए, DV भी हुई, सब कुछ हुआ, और हमारे घरों में खुशी आई, मालाएं डाली गई, बहुत सारे ख्वाब देखे गए। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि इंक्वायरी बैठ गई। इंक्वायरी ने क्या हुआ कि हमारे ख्वाब हमने सोचे थे, जो हमने देखे थे, उनका जनाजा निकाला गया। हम उससे डरे नहीं, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल है कि उनसे कोई पूछने वाला है नहीं, ना उनके पास कोई स्पोक्स पर्सन है, ना वो कुछ बोलते हैं, उनके पास कोई पूछने वाला है ही नहीं। जो उनको लगता है वो करते हैं, जो उनको खुश होता है वो करते हैं। उन्होंने JKPSI को स्क्रैप किया, किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन हम डरे हुए हैं। हम क्यों ना डरे, क्योंकि हमने मेहनत की है। ये सिर्फ 2 साल की मेहनत नहीं है, 27 साल की मेहनत है। और 27 साल के बाद जब हम यहाँ पे पहुँचे और हमें बोला जाएगा कि आपके उधर इंक्वायरियाँ लगी हुई है, और इंक्वायरी के बाद अगर आप में से 1% भी कोई गलत निकला, हमें क्या पता, हम किसी की गारंटी थोड़ी लेंगे। सिस्टम ने उनको लाया होगा, अगर लाया भी होगा। और हमारी डिमांड यही है कि जो आपने इंक्वायरी बिठाई है उसको अब ख़त्म कर दो। उसकी कोई इरेगुलरिटी है ही नहीं। अगर होती तो इतने महीनों से निकल आई होती। जब है ही नहीं तो फिर हमें क्यों बिठा रहे हो यहाँ पे? कोई ऑप्शंस हमारे पास आया नहीं हमसे पूछने कि आपकी डिमांड्स क्या है। अगर उन्होंने सिर्फ वर्बली हमें बोला था कि रूमर है, लेकिन अगर वो सिर्फ इतना हमें बोलते कि आप घर जाओ, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, अगर कोई इरेगुलरिटी पाई भी गई तो हम उनको सेग्रीगेट करके साइड लाइन करके आपको अपना सिलेक्शन लिस्ट दे देंगे। लेकिन आज तक अभी कुछ भी नहीं हुआ। हमारे ऊपर कुछ लोग, अब लगता है कुछ लोगों को कि हम पागल बैठे हुए इधर, कि बोलते हैं कि इंक्वायरी आने दो फिर उसके बाद देखो। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या गवर्नमेंट कुछ सोचती है? क्या उनको लगता है? उनको किसी की मेहनत का कुछ है ही नहीं। हम यहाँ पे बैठे हैं और हम यहाँ पे सिर्फ एक ही जेन्युइन डिमांड लेके बैठे हैं पिछले 20 दिनों से, कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट हमें दिया जाए ताकि हम भी अपने घरों में बैठ सके। हमें कोई शौक नहीं है इधर आने का। हम यही कहेंगे कि हम अपने हक के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमने हार्ड वर्क किया है, हमने पूरे 2 साल डेडिकेशन के साथ पढ़ा है, हमने अपने यूथफुल टाइम के 2 साल दिए हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हमें पूरी होपफुल है हम कि LG सर हमसे इनजस्टिस नहीं करेंगे। उम्मीद है तभी तो हम यहाँ पे बैठे। उम्मीद नहीं होती तो हम घर पे बैठे होते।
और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि हमने मेहनत की है, हमारा हक है, हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे साथ जस्टिस नहीं किया जाएगा। हमारी एक सिंपल सी डिमांड है कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ कीजिए। हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है, तब से भी 2 महीने हुए हैं, अभी तक हमारा सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रहा है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट आए और हम यहाँ से उठेंगे। हमें कोई शौक़ नहीं है सड़कों पे बैठने का। जी एग्जैक्टली, हम तब तक यही बैठेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन लिस्ट नहीं आता है, जब तक हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि हमने मेहनत की है। हम थोड़ी मतलब ऐसे आए हैं इस लिस्ट में, हमने एग्ज़ाम क्रैक किया है, हमारा हक है, हम इनसे भीख नहीं मांगते हैं। हम पीसफुली यहाँ पे बैठे हैं, तब तक बैठेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारा सिलेक्शन लिस्ट नहीं आता है, तब तक हम बैठे, चाहे 2 साल, जब तक हमें सिलेक्शन लिस्ट नहीं मिलता तब तक हम यहीं पे बैठे हैं। सफ़र तो बहुत हमने किया है, और अगर हमें और भी प्रॉब्लम्स आएगी हम उठाएंगे। हमें वो हिम्मत है। जब हमने 2 साल एक बंद कमरे में अपने आप को मतलब इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, तो हम एक महीना 2 महीना जब तक हमें जान है तब तक हम यहीं पे रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलात आएंगी हम उठाएंगे। जी अब इनको इस स्लोगन में कुछ तरमीम करनी पड़ेगी। अब इनका ये स्लोगन होना चाहिए कि पहले बेटी को पढ़ाओ, फिर उनको सड़क पे बिठाओ। चाहते नहीं है बेटी को पढ़ा के यहीं पे हम सड़क पे बैठे पिछले 20 दिनों से। और रही विकास की बात, कोई विकास नहीं हुआ है। कौन सा विकास हुआ? विकास हुआ होगा तो हम यहाँ आज बैठे नहीं होते 20 दिनों से। यही अपील रहेगी कि प्लीज़ हमारा सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ कीजिए, हमें एश्योरेंस दीजिए, हम यहाँ से उठेंगे। हमें कोई शौक़ नहीं है सड़कों पे बैठने का, हमें कोई शौक़ नहीं है दर दर की ठोकरें खाने का।